یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ سہیل بٹ سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی چناؤ مہم مزید تیز۔ مختلف پارٹیوں کے لیڈر اور امیدوار رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے کر رہے ہیں جی توڑ کوششیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا ڈوڈا میں چناؤ جلسے سے خطاب، کہا جموں کشمیر اب ترقی اور خوشحالی کی ایک نئی داستان کر رہا ہے رقم۔ ہندی دیوس کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد، روزمرہ کی زندگی کے دوران ہندی زبان کی افادیت کو کیا گیا اجاگر۔ اور کشتواڑ اور بارہمولہ میں دو الگ الگ جھڑپوں میں 2 فوجی اہلکار اور 3 ملیٹنٹ ہلاک۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ میں اب جبکہ صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور امیدواروں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں نے بھی اپنی چناؤ مہم میں تیزی لائی ہے۔ کئی سیاسی پارٹیوں کے قومی رہنما بھی ان دنوں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں چناؤ مہم چلا کر رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں ایک بڑے چناؤ جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے وادی چناب کے 3 ضلعوں میں پھیلے 8 اسمبلی حلقوں کے لیے بی جے پی امیدواروں کے حق میں لوگوں سے ووٹ طلب کیے۔ ہمارے جموں کے نمائندے گلشن رینا نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر کو ایک محفوظ اور ترقی یافتہ علاقہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اب ترقی اور خوشحالی کی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی سے لے کر آج تک جموں کشمیر کو غیر ملکی طاقتوں نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پریوار واد نے جموں کشمیر کو کھوکھلا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو دہشت گردی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نریندر مودی نے نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ان پارٹیوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اب آخری سانس لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے نوجوانوں کی بہبودی کے لیے متعدد کام کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات جموں کشمیر کو ایک نئی طرح دیں گے۔ نریندر مودی نے جموں کشمیر میں عملائے جا رہے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی ذکر کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتی آ رہی ہے اور یہ پارٹی امن و امان، راحت رسانی اور خوشحال زندگی گزارنے کی پاسبان رہی ہے۔ پلوامہ میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری لانے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ آنے والے انتخابات کے دوران ایماندار اور محنت کش امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ دیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج دمہال ہانجی پورہ اور ایش مقام میں عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ پارٹی نے پچھلے 10 برسوں کے دوران لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی ٹھوس کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ انتخابات کے دوران پارٹی امیدواروں کے حق میں ووٹ دیں۔ بی جے پی نیشنل ایگزیکٹو کی ممبر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی نے آج ابہامہ پلوامہ میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا اور پارٹی امیدوار کے حق میں چناؤ مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس پارٹی کی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان پارٹیوں نے لوگوں کو راحت پہنچانے کے بجائے ان کے مشکلات میں اضافہ کیا۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین اور خان صاحب حلقے کے امیدوار حکیم محمد یاسین نے آج کھاگ میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ علاقے کو پچھلے برسوں کے دوران ترقی کے ہر ایک پہلو میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چناؤ جیتنے کے بعد وہ لوگوں کے تمام مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کام کریں گے۔ واضح رہے کہ اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو یو ٹی کے 7 ضلعوں میں پھیلی 24 اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان میں کشمیر صوبے کے 16 اور جموں صوبے کے 8 اسمبلی حلقے شامل ہیں۔
इस मरहले की पोलिंग के लिए इंतजामी सतह पर सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और पुरअमन, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जिलों के जिला चुनाव ऑफिसर मुतवातिर तौर चुनाव इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। पुलवामा जिले को जनूबी कश्मीर के सियासी मंजरनामे में कलीदी अहमियत हासिल है। ये जिला 4 असम्बली हलकों पर मुश्तमिल है। जिले में पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जिले में इंतखाबी तैयारियों के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मीर नज़ीर ने जब जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बशारत कुयूम के साथ बात की तो उन्होंने कहा, प्रिपरेशंस की बात अगर कहें तो हमने जितनी भी प्रिपरेशंस हैं वो पूरी कर ली हैं और ज़िला में कुल 481 पोलिंग स्टेशंस हैं। पोलिंग स्टेशंस पे जो प्रिपरेशंस होती हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ वो रखी गई हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे बिजली है, पानी है और उसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड या PWD इलेक्टर्स हैं उनके लिए रैंप, व्हील चेयर और उसके साथ साथ जो वोटर अवेयरनेस या पोस्टर्स हैं वो भी सब जगह लग गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पहलू रहता है वो जैसे कैंडिडेट्स हैं उनका कैंपेनिंग होती है और अभी तक लगभग सभी कैंडिडेट्स ने 250 से ज़्यादा परमिशंस ली हैं, जिसमें रैलीज हैं, उनकी डोर टू डोर कैंपेन होती है। उसके अलावा जो हमारे इम्पॉर्टेंट रहता है वो पोलिंग पार्टीज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, इन सब की ट्रेनिंग्स हमने कर ली हैं और अभी हैंड्स ऑन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं या फिर एक्सपेक्टेंट जो हमारे फीमेल वोटर्स हैं, उसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड या PWD इलेक्टर्स हैं उनको वोटिंग में हमेशा तरजीह दी जाती है। ज़िला पुलवामा के जितने भी वोटर्स हैं उन तक यही मैसेज और अपील है कि 18 सितंबर जो हमारा यहाँ फेज़ 1 का पोलिंग डे है उस दिन वो बड़ी तादाद में और सभी लोग जो हैं अपने अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में आएँ और अपना वोट कास्ट करें और एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक वोटर और एक वोट की अहमियत है उसको ना भूलें, अपना वोट जो है वो ज़रूर कास्ट करें। यूटी में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए भी तैयारियां शद्दोमद से जारी हैं। इस मरहले के तहत श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों की 26 नशस्तों पर 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए चुनाव ड्यूटी पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है। असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए दाखिल किए गए नामजदगी के कागजात की जांच पड़ताल कल मुकम्मल हो गई। 40 नशस्तों के लिए दाखिल की गई 518 नामजदगियों में से 449 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए। चुनाव कमीशन की तरफ से जारी आददोशुमार के मुताबिक जिला बारामूला में 107, बांडीपुरा में 46, कुपवाड़ा में 75, जम्मू में 113, कठुआ में 38, उधमपुर में 38 जबकि सांबा जिले में 32 नामजदगियों को दुरुस्त पाया गया। इस मरहले के तहत उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे और हतमी मरहले के तहत यूटी के 40 हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर के स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। असम्बली इंतखाबात के दौरान राय दहंदगान बिलखुसूस नौजवान वोटरों की बढ़ चढ़ कर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए यूटी के मुख्तलिफ हलकों में स्वीप के तहत इख्तिराई प्रोग्रामों का इनकाद भी जारी है। इन प्रोग्रामों के दौरान मुनफरिद अंदाज में वोटरों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है। अनंतनाग के जिला चुनाव ऑफिसर SF हमीद ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव अमल के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए अफसरों और एहलकारों के माबैन बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़िले में चुनाव के मिसाली ज़ाब्ता इखलाक पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। आज मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क में मुतादिद तकारीब का इनकाद किया गया जिनमें हिंदी ज़बान की अहमियत को उजागर किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन और ऑफिशियल लैंग्वेज डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि हिंदी ज़बान ने मुल्क को मुत्तहिद करने में एक कलीदी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी का दूसरी ज़बानों के साथ कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि ये सभी ज़बानें आपस में हम आहंग हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत कौम तमाम ज़बानों को मुस्तहकम करने से ही वजूद में लाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी में मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम देने पर तवज्जो दी गई है।
वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर राज्य भाषा भारती मैगजीन के खुसूसी शुमारे की रस्मी रनमाई अंजाम देने के साथ साथ राज्य भाषा गौरव और राज्य भाषा कीर्ति अवार्ड्स भी अता किए। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा ने भी लोगों को हिंदी दिवस के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें हिंदी जबान की अहमियत को उजागर किया गया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लोगों को हिंदी दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस जबान के जरिए मुल्क की वहदानियत बरकरार है और सकाफत व तमद्दुन को फरोग मिलता है। हिंदी दिवस के ताल्लुक से आज आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर में भी शोबे के सरबराह सुनील कौल की सरबराही में अहद लेने की एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल न्यूज़ डॉक्टर प्रज्ञा पलिवाल गौर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। हिंदी दिवस के सिलसिले में आज अभिनव थिएटर जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान हिंदी जबान के तरक्की और तरवीज के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदी जबान भारत के गोनागो सकाफती वर्से की अक्कास है। बारामूला जिले के चक तापर क्रीरी इलाके में कल रात देर गए शुरू हुआ तसादम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इतलात के मुताबिक ये तसादम उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। उधर किश्तवाड़ जिले में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन हुई एक झड़प में फौज के 2 जवान अज़जान हो गए हैं, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। जिले के नादीगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इतला मिलने के बाद फोर्सेस के जवानों ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और इस तरह झड़प शुरू हुई। इब्तदाई कार्रवाई के दौरान फोर्सेस के 4 जवान जख्मी हो गए, जिनमें से बाद में 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी और दीगर फौजी हुकाम ने अज़जान हुए फौजी जवानों को खराज पेश किया है। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान की निगरानी में आज जम्मू में यूटी की झैली अदालतों और हाईकोर्ट में काम कर रहे नाजरों के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी सोनिया गुप्ता ने किया। तरबियती प्रोग्राम के दौरान मुतल्लिका अफसरों को माली निज़ामत और कवानीन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक तरबियत दी गई। पुलवामा की जिला अदालत और झैली अदालतों में आज तीसरे कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीर अहमद डार, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा के चेयरमैन भी हैं, की सदारत में मुनक्किदा इस लोक अदालत में 734 मामलात उठाए गए, जिनमें से 348 केस निपटाए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल झारखंड, गुजरात और उड़ीसा का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वो इन 3 रियासतों में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। ज़राअत के मरकजी वज़ीर ममलिकत रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत मुल्क में खुराक की यकीनी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़राई शोबे में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामों को अमला रहा है। ब्राज़ील में आज ज़राअत से मुतल्लिक G20 वज़ारती मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने ज़राई शोबे की तरक्की को तरजीहात में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि पैदावारियत बढ़ाने के साथ साथ किसानों की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को यकीनी बनाने की तरफ भी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।